Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss electrostatics of a conductor. So students, this is a very useful topic to explain parallel plate capacitor having a conducting material in between them. I explain you each property of electrostatics of a conductor, means conductor in static electric field, by taking some simple points. These are the points are as follows. Let us explain each point one by one. First, in electrostatic equilibrium. First one is in electrostatic equilibrium, electric field inside a conductor is zero. Electric field inside a conductor is zero. हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं. दिस इज ए कंडक्टर which is present in uniform electric field as in between the capacitor plate. Let us consider two capacitor plates that are connected with some potential. One is positive and other is negative plate. So the part attracted by positive will have some polarization and it will be negatively charged. Similarly, the negative opposite part will be polarized by negatively charged plate and it will be positively charged. So students, the electric field inside the capacitor plate is given by EO and electric field inside the conductor is given by E polarized electric field. Now the resultant electric field in the region of conductor, or we can say that conducting material, is E outside minus polarized. Polarized electric field or outside electric field were subtracted from each other. But if or we can say that for a conductor E outside is equal to E polarized, hence for a conductor E outside electric field is equal to polarized electric field. That's why electric field in the region of conducting material is zero, or we can say that electric field inside a conductor is zero. Now student, next, electric field just outside of the surface is perpendicular. Electric field just outside a charged conductor is perpendicular. मैंने ये वाली प्रॉपर्टी एक बार पहले भी एक्सप्लेन की हुई है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर को चार्ज कर देता हूं, आफ्टर चार्जिंग ये जो चार्ज हैं सरफेस पे जो भी चार्ज लाई कर रहे हैं, ये चार्ज अब स्टैटिक है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. अगर मूवेबल होते तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट बन जाता, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, मींस ये स्टैटिक है अभी. और स्टैटिक होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही रहेगी. क्यों कह सकते हैं ये? एक बार इसका कंट्रडिक्शन लेके देखो. लेट अस इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर, इट विल हैव सम angle with the surface. So the surface component is cos component and this is our sin component. जैसा कि हमने बोला हमारा cos कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. cos कंपोनेंट नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये थोड़ी ना है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. कब होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0? जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा हो. मीन्स टू से दैट हमें याद रखना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड rather than 90 degree does not possible on the surface of a charged conductor. क्यों? इसका हम एक theoretical explanation भी दे सकते हैं. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि if इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट बना तो cos कंपोनेंट जो भी है हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी है वो कंपोनेंट चार्जेस को सरफेस के थ्रू मूव करवाने लग जाएगा. और चार्ज अगर सरफेस के थ्रू मूव करने लग गए तो क्या होगा?
करंट बनने लग जाए, क्योंकि चार्ज वाइब्रेट करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बनेगा। बट अगर ओनली नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये चार्ज बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये अभी फिलहाल मान लो एयर के अंदर है, एयर इज अ बैड कंडक्टर तो वो तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, कि चार्ज बॉडी के अंदर अंदर रहेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉर्मल। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था, E डॉट ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, देन जैसा कि हमने प्रूव किया एज E इज इक्वल टू जीरो, हेंस Q enclosed इज इक्वल टू जीरो, अंदर चार्ज नहीं होगा। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं हम। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि जैसे कि हमने पढ़ा, चार्जिंग होने का मेन रीजन क्या है, चार्जिंग होने का क्या ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर बराबर रहेंगे तो बॉडी न्यूट्रली चार्ज रहेगी, बट अगर पॉजिटिव एक्सेस हो गया इसका मतलब बॉडी चार्ज होना स्टार्ट कर रही है अभी। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है अब पॉजिटिव चार्ज है बॉडी। मींस कहने का मतलब ये है कि एक तो ये मैं ये कहूं कि नेट चार्ज और एक चार्ज, एक सिंपली चार्ज बोले, बॉडी के अंदर चार्ज होता है बट नेट चार्ज कभी कभी जीरो हो जाता है, इसलिए बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, अंदर की तरफ चार्ज जीरो क्यों होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर नेट चार्ज आया पॉजिटिव, और नेट चार्ज पॉजिटिव आया तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और वो सारे कहां पे, किनारे किनारे जाके लग जाएंगे। दैट्स व्हाई टोटल इनसाइड चार्ज इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेयर्स में रहेंगे, दैट्स व्हाई दे आर जीरो। ओवरऑल नेट चार्ज इनसाइड ए बॉडी विल बी जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए कंडक्टर is an example of equipotential surface as well as equipotential volume। ऐसा क्यों, सरफेस पे तो चलो हमने माना इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हम कह सकते हैं। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगी हरदम तो ऐसा क्या होगा, या फिर हम अगर कह रहे हैं अंदर चार्ज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक बार वर्क डन निकाल के देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स वी कैन से दैट क्यू ई, हाँ, डॉट डिस्प्लेसमेंट इनटू डॉट हटेगा तो cos थीटा भी आएगा। एंड इफ cos, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे तो cos 90 विल बी जीरो। cos 90 जीरो तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो मींस no work is done to move a charge on surface of a conductor. Now inside, what is inside, inside q is zero, inside q is zero, that's why work done q zero, or electric field also zero, huh? Inside e zero, that's why w zero, and w zero then also zero work is done to move a charge inside a conductor. That's why conductor can be say equipotential surface and can also be say equipotential volume. Now electric field on the surface of a charged conductor is always sigma divided by epsilon naught. किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो हमने या तो अपने लास्ट कुछ डेरिवेशंस उठा के देख लो गॉस लॉ के, या फिर नया एक्सप्लेनेशन बनाओ कि सरफेस के ऊपर क्या होता है। लेट अस कंसीडर ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड किसी भी टाइप का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हो आप। इसके ऊपर क्या कंसीडर करो, एक पर्टिकुलर सरफेस काटो और उस सरफेस का गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। अंदर की तरफ तो जैसे कि हमें पता है चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट आप बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, बाय गॉस लॉ it is q divided by epsilon naught, and by flux it is e ds, closed integration, huh? ds integration, after integration it will complete this area, that's why e into a, and also q as the body is uniformly charged, that then by charge distribution constant sigma,
Q is equal to sigma into A divided by epsilon naught. This cancel. E is equal to sigma divided by epsilon naught. This is always electric field on surface of a charged conductor is sigma divided by epsilon naught. ठीक है, हमने सेम एक्सप्रेशन एट सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल पे भी किया है, हमने सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर पे भी किया है. ठीक है, आप जाके देख सकते हो, जो मैंने गॉस लॉ की एप्लीकेशन सोल्व करवाई थी तो एट सरफेस वाला एक्सप्रेशन में मैंने ये निकलवा रखा है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी all points related to electrostatics of a conductor. And now still if you have any doubt, then please put it on your comment section. And if you learned the content, then please like and subscribe the video. Thank you for watching.